how does he speak has a lot to do with how he thinks, and how the person who is Sthit Pragya, who is in fixed in transcendence, so his thought process does not get affected by the dualities of this material world. And his thought process is very Krishna conscious, meaning not only it is getting affected by the dualities of the material world, he is able to see mercy of the Lord beyond the dualities of the material world. And that's how then he speaks. So that is the Ka Bhasha. And then also we discussed how Kim Asit Vajeta Kim. To the extent a person has sense control, then to that extent he can properly engage those senses in the service of the Lord. One reason our thought process may get affected is we have a lot of expectations, and we feel that Krishna should reciprocate in this way, things should happen in this way, and when they don't happen, then we feel very disturbed and unhappy. So, in essence, we discussed that this verse in a practical situation, uh, how we can apply in our life is that we can keep Guru Sadhu Shastra above our mind, or we can live a life following Vipra Dharmachut Ashraya. So that although we may have some disturbance, but still we are able to align ourselves to the plan of the Lord. So this was query asked by Arjuna. Now in the 2.55, this particular verse, general symptoms of Sthit Pragya, they are mentioned. 2.54 is a query by Arjuna. 2.54 is a query that how does a Sthit Pragya speaks? Kim Prabhaseta, what language he speaks. Kim Asit, how does he sit in the midst of sense objects? And Vrjet Kim, how does he walk? How does he engage with the sense objects? So that we discussed. And now the general symptoms are mentioned. From here, Krishna is replying to this query put forward by Arjuna. Shri Bhagavan Vacha प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. So Sri Bhagavan Uvacha, the Lord said, प्रजाहाति यदा कामान. उनका पहला क्या बता रहा है सिम्टम्स? प्रजाहाति यदा काम. ये जनरल सिम्टम्स बताएं कि वो क्या करता है, जितने भी भोग की इच्छाएं हैं उनको क्या करता है, गिव अप कर जाता है. प्रजाहाति. सर्वाम पार्थ मनोगतान. Why? Because he knows all varieties of sense gratification or desire for sense gratification is nothing but manogatan, is mental concoction. The happiness is mental concoction. Atmani evatmana tustaha, and he remains tusta. Tusta means satisfied. Sthit pragyasya tado uchyate. So these are the general characteristics. So in order to enter into the realm of transcendence, one has to cross through a gate. Then only he can enter into the realm of transcendence. And what is that gate? Stopping sense gratification. Then only one can enter into the realm of transcendence. I was discussing before also that how, although there may be so many paths, although there may be so many processes, but as far as one thing is concerned, everyone is on one page that one has to come out of material existence. One has to stop sense gratification. When one stops sense gratification, then there is a possibility to enter into the transcendence. Obviously, now, depending upon their adhikar, depending upon which parampara they are connected to, they may have different understanding about transcendence. But to enter into transcendence, one has to give up this. So this is a general characteristic
that he gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. So now, this particular devotee, he is able to give up all desire for sense gratification. So why he is able to give up all desire for sense gratification? Because he knows that there is no happiness there. See, any desire for sense gratification we have, you will find actually it arises because of mental concoction. Our mind makes it feel that there is happiness, but actually there is no happiness in the sense object. Same sense object gives happiness to one person, and same sense object does not give happiness to another person. Because sense object does not have happiness. It's the mental concoction of a person who thinks that there is happiness there. So those who are transcendentalist, they know that nothing is there, and they are able to give up. But in a conditioned stage, mind makes it feel as very big thing. And Krishna is telling sarvanapi. It's not that he gives up only some desire for sense gratification. Sarvamapi means all desires. Why? Even a one desire of sense gratification will not help us to enter into the realm of transcendence. सपोज कोई डिवोटी है, उसने सारे नियम फॉलो करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक वीकनेस है, तो वो ट्रांसेंडेंस के रेल में कर पाएगा एंटर? भक्ति में आगे कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा? एक वीकनेस आपको इस दुनिया में बांध के रखेगी। इसलिए भगवान कहता है सर्मामपि, डिजायर छोटा है लेकिन उसके प्रति आसक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी, डिजायर बहुत बड़ा हो जाएगा। There one person who was leaving his body in the west and doctors asked him what is your last wish, तो फिर बताया मैं वो गोपाल बीड़ी पीता था गांव में, बहुत याद आ रही है उसकी, जाने से पहले मैं गोपाल बीड़ी पीना चाहता। वो डेलीगेट्स आए, गांव में गए, बीड़ी खरीदा, वापस गए, उसने स्मोक किया, फिर प्राण को त्यागे। वन डिजायर। कई बार डिवोटी है जो सब अच्छा कर रहा है लेकिन उसकी एक वीकनेस है, इट मे बी रिलेटेड टू वॉचिंग सम डर्टी मूवीज और वीडियोस, he cannot enter into transcendence, he will remain here, that one desire will keep him hooked here. कोई डिवोटी है उसका कोई और वीकनेस है, will be here. कोई और डिवोटी है वो बहुत ज्यादा सोचता है और चीजों को फॉलो नहीं कर पाता है, then sarvamapि, he will be here. किसी का टंग का वीकनेस है, he has desire to eat, then he has to be here. And these desires are like that, they are insignificant, they are tiny, but attachment becomes strong. And because of that attachment to even one desire, like Bilamangal Thakur had only one desire, that was association with the Chintamani. And then you see, he could not understand only anything. Knowledge was not entering only in his system. Like that. He was like taken back. So he's telling if one wants to enter into the realm of transcendence, then he has to give up all sense gratification. Then only he can enter. Otherwise, it is very difficult. At the same time, it is very difficult for a jiva to give up sense gratification. Why? Anandamayo bhayasat. Jiva gets happiness in sense gratification in a conditioned stage. So param drishtvana nivartante. That is why it becomes a necessity for a spiritualist to start getting some spiritual happiness, so that he can start giving material happiness. At the same time, to have spiritual happiness, certain regulation is required, certain restraint is required. Then only you can start cultivating spiritual happiness. If we don't go for that restraint, that discipline, that regulation, then there is no hope to have spiritual happiness only. So some restraint, some discipline, some regulation is required in relation to interaction with the sense object, and then a sincere attempt to have spiritual happiness is required. Then he gets that spiritual happiness.
So as I was telling yesterday, that how there is a misery in sense gratification also, and there is a misery in giving up sense gratification also. But spiritualist, he chooses which misery? Giving up. Now, why it becomes difficult? Because misery in sense gratification comes in the end, and misery in giving up comes in the beginning. That is why it becomes a challenge for a sadhaka. Arey, kya hai? How can I give up? I was getting such happiness by this. And he forgets to see that he has to suffer in the end. But a spiritualist, he knows that I will go through this pain now. And he is ready to go for that pain. And when both things are done very nicely, then only this transition happens. Otherwise, it does not happen. Both things done nicely means there is a sincere restraint and there is sincere practice. If one is sincerely trying to restrain and not sincerely trying to practice, then he falls back. If somebody is trying to practice nicely, not trying to restrain, then that practice does not help him to have higher taste. Then again he falls back. तो you see कितना मुश्किल है है ना? You are surrounded by sense objects for sense gratification and you have to say रुको मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ. And then you have to helplessly cry out for Krishna. Both things are very important. And when one does both, then slowly, gradually, Krishna gives spiritual happiness. So we should have spiritual happiness. Like we could start following four regulative principles because we got some spiritual happiness. Same way we have to see. And we should not hanker for any relationship outside devotees. How that will happen? When we have good relationship with devotees. We should have that satisfaction in devotees association. Same way we should not hanker for eating anything outside. How that can happen? If you are happy eating prasadam, is it not? We should not hanker for anything else. That can happen by reading scriptures, by remaining busy in Krishna's service. And if both these things are done, then you will find that one can have his mind purified and he can find satisfaction. Actually, the more sensory thoughts they enter in the mind, that much mind becomes contaminated and agitating. And more we restrain them, and at our level, restrain means we should stop giving any input and we should strengthen our intelligence. Then that's the way mind is purified. But unfortunately, it is the nature of the mind that at least one idea or thought of sense gratification he will keep. अरे सब छोड़ दिया, सब छोड़ देंगे तो कैसे होगा, एक तो रहना चाहिए ना. Like that. And that's why Krishna is saying sarvanapi. That one idea, that one thought, that one desire will keep you here in the material world. And how to understand this? And that it is a mental concoction. I had given examples before about this. हाँ वो तो एक है, इसके एग्जांपल्स भी दिए थे ना. Right. Example, like gulab jamun is kept in front of you and somebody comes from behind and tells कि प्रभु आपका जो है सारे पेपर में फेल हो गए. तो gulab jamun is there but happiness goes. Or that Hemlakha story we had heard, that how the person was thinking that my wife is so beautiful and he was enjoying, but the wife was with somebody else and the maid servant was with the king. And later on he came to know, oh Babre, she was not the same lady. But he was enjoying same happiness. Why? Because happiness was not in the lady, happiness was in the mind. And that Amoglila proves the story, that bus, one boy is going behind, one Mataji comes. Same mental concoction. But becomes very difficult to not get affected by this. So that is why for us, only trying to restrain will not help. Trying to helplessly cry out and take shelter of the Lord also will help. Otherwise, it is very difficult. So for us,
we have to note down what all weaknesses we have, and gradually and all we have to work on all of them. And three things are important to come out of any weakness. One is desire, second is practice, third is prayers. So practice is in both terms. We have to restrain also, and we have to take shelter of Krishna also. And we should have sincere desire and then prayers. Now, many times devotees, they have some weakness, then they take guidance, and then after 1 week they come, प्रभु जी नहीं हो पाया, फिर ऐसा हो गया, एक हफ्ते में कुछ नहीं हो पाया. Minimum 2 years, whichever weakness you have, don't take any input regarding to that weakness. For 2 years, practice very sincerely and offer prayers to Krishna. Then mercy will come, and by that mercy, that attraction will go away. Otherwise, there is no option. Unless we give sufficient time to show to Krishna that I am very serious about giving up this bad habit, I am very serious about giving up this anartha, then only it will go. Otherwise, it is very difficult. We 4-5 months we try to remain away, and then we go home. Then one day we watch something or do something, then we come back. So all last 6 months practice went away. Again, the mind goes to the same level of contamination. So at least 2 years. That's why in voice actually it is very good if we can avoid going home, and when we go for very few days only, like that. Because in home there is a tendency, and whole environment has become like that now. You know, you may be good, but then your friend may come, देखो मैं क्या वीडियो दिखाता हूँ आपको. And people are like that. People are like that. I remember one time I was in my first year, I think, college, and I went to my bua's place. So my bua's son, he is of almost similar age to me. So when I went to him, तो बोला देखो आज मैं तुमको एक स्पेशल जगह पे लेके जाऊंगा. मैं बोला पता नहीं क्या है स्पेशल जगह. He took me to one prostitute's house. मैं बोला बाप रे भागो यहाँ से. तो देखो अरे तो इसको लगा कि मैं वो करूंगा, क्या बोलेंगे, नहीं अप्रिशिएट, या उससे उसको अप्रिशिएट करूंगा या उससे अलाइन हो जाऊंगा. तो मेरा रिएक्शन देख के वो डर गया, बोले मेरी मम्मी को मत बताना, मम्मी को मत बताना. मैं बोला अरे नालायक तो क्या कर रहा है. Society actually people are behind sense gratification only. They are making plans, they are thinking about it, and if they get, they think themselves as very, they have achieved something. In such an environment, for us to remain away is very difficult. Only handful of devotees is staying here, they are trying sincerely. At least when we go home, ideally is go for less. Like I would go not more than 3 or 4 days. So what happens in those 3-4 days, you are able to protect yourself. And when I would go home also, I would be very busy. I would cook something or help my mother in cooking, or clean the altar which we had in our house, or go with father to the fields, like that. And they also become happy. One day I had told my father, Papa, मैं देखना चाहता हूँ अपने कौन कौन से खेत हैं. My father became so happy. चलो बेटा पहली बार तुमने पूछा है. He started showing, देखो ये हमारा यहाँ. मैं समझ गया काफी इन पे ज्वाइन कर सकते हैं. So they become happy, like that. So in home, actually, that's a time where whatever we are trying to come out of this, everything boils down. So you have to be very careful. At least 2 years, you avoid that weakness. And human life is actually to purify of these weaknesses, to come out of this desire for sense gratification. Otherwise, time and again, mind hooks to that. And mind will suggest thoughts to enjoy in different way. Like this you can enjoy, like this you can enjoy, like this you can enjoy. And only ways when we restrain, when we don't give input, and we helplessly take shelter of Krishna, that my dear Lord, this life is for your pleasure, like that. And have positive things, have good relationship with devotees where you can share your heart, you feel very happy with them.
have good sadhana, read scriptures very nicely, chant very nicely, take up service, be busy in Krishna's service. I think that Prabhupada says we have given so many life to sense gratification, give one life to Krishna. So we can live a life where we can try to come out of all these tendencies and give pleasure to Krishna. I think that. So that's why he's saying Sarvan, that all desires. And see, Vishwanath Chakravarti Thakur is translating that when he gives up all desires which arise from mind alone. रूपाद जी ने लिखा है मेंटल कंकॉक्शन, इन्होंने उसको थोड़ा अलग तरीके से ऐसा लिखा है कि सारे डिजायर्स कहाँ से आ रहे हैं, माइंड से आ रहे हैं, और एक बार वो सारे डिजायर चले गए देन ही सेटिस्फाइड. जीवा इज बर्निंग बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल डिजायर्स. So many material desires. I want this, I want this, I want this, I want this. If a devotee comes to a level where he just wants to give pleasure to Guru and Krishna, he has no other desire, then he does not need to come here. But we have so many desires to enjoy in so many ways, right? Bhagavatam affirms that any person who is fully Krishna conscious or devotional service of the Lord has all good qualities of the great sages. Whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualities because he is sure to take refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kind of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, sense desires cannot be stopped, but one engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. There is one sloka comes in relation to Amrish Maharaj, how he purified all his material desires. Hmm? वो तो है सबको, लेकिन by making Krishna's desire as his desire, he purified all his desires. Like that. So if we live, Prabhupada wanted like this, superiors want like this, Krishna want like this, I want to live for their pleasure. That is why you see so much is emphasized on this Yasya Prasada Bhagavad Prasada. Actually, this is a driving force which can help us to come out of material existence and take shelter of Krishna. When we have this tendency, instead of giving pleasure to myself, I want to give pleasure to Guru and Krishna. I am for their pleasure. Then only this pleasure will be able to give up. And for that, artificially, it cannot happen. We need to have that level of gratitude for them. We need to have that level of relationship with them. That's why for us to read about Prabhupada, to hear from Prabhupada is very important. Then we can develop that. We need to have that quality of relationship to have this feeling to give pleasure to them. Same way about Krishna, we have to read, hear about him to understand how Krishna is so loving. There is one place where it comes, Krishna cannot see distress of any jiva. Like that. Krishna can reciprocate with the love of jiva. And Krishna is so compassionate, although we are not trying to follow and we are struggling to follow so many things, but then he is still encouraging. Like that. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this devotion service will instantly help one to the platform of transcendental consciousness. So we have to actually make desire of Guru and Krishna as our desire. Sabri was told do this, he gave up life for doing this. Prabhupada says no. The instruction of the spiritual master is a life and soul of disciple. Kalakanda Prabhu had asked to Vaisesika Prabhu that Prabhu, many of us have not received personal instruction from our spiritual master. So how we, live our life? So he said, you are so fortunate. We became surprised. How? He said, at least all of us have received this instruction that chant 60 rounds and follow four regular principles. So if we give up our life for this also, then also we'll be successful. No one can say that my guru did not give this instruction also. Correct?
Everyone at least receives this instruction. And then what happens? We can realize that we are eternal servant of the Supreme Lord. As a master, the desire to enjoy comes, but as a servant, the desire to serve will come. Knowing that such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. So, devotee actually does not think like this also, whether I am qualified or not qualified. He tries to do what will please Guru and Krishna. So, and then whatever he is able to do, it depends on the mercy of Guru and Krishna. He's happy about it because he's trying to give pleasure to Guru and Krishna. Rupa says, there were people more qualified than me also, but that I sincerely tried. Then he was empowered, like that. Step by step, Krishna answers each of the 4 questions from this verse until the end of the chapter. He gives up all desire so that not even one desire remains for an object, sarvan. He is able to give up these desires because they belong to the mind, manogatam. They are not intrinsic quality of the soul. क्यों वो डिजायर को गिव अप करता है? क्योंकि वो सब माइंड के लेवल पे हैं. These desires are not coming from the soul. These desires cannot give happiness to the soul. If they were the intrinsic quality of the soul, they could not be given up, just as fire never gives up the heat. The cause for this is stated. He is satisfied with the soul, whose very nature is bliss, in the mind, which has withdrawn from the sense objects. So he's saying that the moment he withdraw from the sense object, he feels happiness because that's the natural quality of the soul. When all the desires situated in the heart are cleared away, the mortal becomes immortal and enjoys Brahman. Katha Upanishad. Yada sarve pramuchyante kamah yesha yadi sritah atha mityo mito bhavati atra brahma samasnute. So it is mentioned about that how the people on Earth planet, they are predominated by Rajoguna, and they are always in distress by Kama. They are always in distress by this desire to enjoy. But if a person can give up all his desires, then he enjoys immortality. He enjoys Brahman. He enjoys self-satisfaction, like that. You see, small child is very happy. Why? Not suffering from karma and not having any desire. हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए, यही करेगा, कुछ दे दिया तो खुश, नहीं दे दिया तो खुश. थोड़ा सा रोएगा फिर खुश हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसका देखो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि मटेरियल डिजायर्स आ जाते हैं. ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, ये सब मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं. Vishnu Chakri Thakur is saying, as a desire belongs to the mind, it is possible that they can be given up. If they belong to the Atma, then it would be difficult to give up. But can one remain like a dry piece of wood? One is completely satisfied in the mind, which has withdrawn from the desire, with one Sarupa or the Lord, whose essence is self-manifesting bliss. The person who gives up all sense object as insignificant and enjoys the bliss of the self is said to be situated in samadhi. He's telling when one withdraws from the sense object, then he can be happy either because of his own swarupa or because of the Supreme Personality of Godhead. The meaning is either self-realization or God-realization will happen by giving up all the desires. Self-realization means he will understand I am soul, so he'll be happy at level of soul. God-realization means he'll understand I am servant of the Lord, he'll be happy in that relationship. According to Medani, Atmapunsi Swabhavepi Priyantah Manashorapi Dhirto Api Manishayam Sarir Brahmanorapi. Atma refers to the human being, nature, fire, mind, determination, understanding, body, and Brahman. The word Brahma in this verse refers to Jiva or Ishvara.
So in essence, here it is mentioned that all the desires, they are coming from the mind, and those who want to enter into the transcendence, they should give up all the desires. That is mentioned. यस, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसे माइंड कोई प्रपोज करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो हम कैसे गिव अप कर सकते हैं? पोस्टपोन करना है, कैसे करेंगे? कुछ और काम करके, लेकिन माइंड बार बार उसको बोलता रहेगा। मुझे वहां से चले जाओ, जगह से वहां से भाग जाओ कहीं दूसरी जगह। इसमें आप देखेंगे खास करके जब सेंस ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है तो माइंड पागल हो जाता है। तो एक तो चीज है, देखिए शास्त्र क्या बताते हैं कि यू कैन विन बैटल अगेंस्ट माइंड बिफोर इट स्टार्ट्स। एक बार वो स्टार्ट होगी फिर तो ही इज अ चैंपियन। वो आपको कन्विंस ही कर देगा, और कन्विंस करने के बाद में, इंडल्ज होने के बाद में, फिर आपको गिल्ट आएगा, अरे क्या हो गया ऐसा। तो अभी वो कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जो है बैटल स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जो जो हमारी वीकनेस हैं, वो सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर किसी को जैसे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, देन ही शुड हैव पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल से भी उनको दिक्कत हो रहा है, देन ही कैन बेटर कीप बटन मूव। ही शुड नॉट कीप दैन स्मार्टफोन और एक्सेस टू इंटरनेट। ऐसा वैसे ही कोई वीकनेस है, मतलब कोई माता जी है जिनके प्रति वीकनेस है, तो वन हैज टू सी दैट he does not have interaction with her like that, avoids like that। तो पहला चीज तो ये है कि हमको देखना है कि जो हमारी वीकनेस है उनके अनुसार हम वैसा सराउंडिंग जो है क्रिएट ना होने दें जिसमें कि वो वीकनेस जो है हमारे को ओवर पावर करे। तो वो हमको सिंसियरली ऑनेस्टली करना पड़ेगा, और माइंड का ही नेचर है, जो हमारा वीकनेस है उसके लिए जो सेंस ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए जो है प्लान बनाएगा। तुम ऐसे चले जाना, तुम ऐसे चले जाना, वो वहाँ खड़ी होगी। या तुम ऐसे जाना, तुम्हारे मोबाइल में तो ये है, लेकिन ऐसे टूट जाएगा पैरेंटल कंट्रोल। या घर जाना, घर में ऐसे कर लेना, उनका मोबाइल ले लेना। माइंड हैज़ ऑल आइडियाज़ ना, और कितने करोड़ों आइडिया है माइंड के पास। कितने सारे जन्मों में, सारी स्पीशीज़ में उसने यही तो किया है। तो उसके तो करोड़ों आइडिया है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जब माइंड को अपॉर्चुनिटी में आती है ना तो पागल हो जाता है, लेकिन सेंस ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो नहीं होगा ऐसा। अभी हमारे लिए सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहना तो जो है उतना नहीं है कि हम लोग जंगल तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जो जो वीकनेस हैं वो वाले सेंस ऑब्जेक्ट एटलीस्ट दूर रहने चाहिए हमारे। तो वो हमको ऑनेस्टली करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी पे काम नहीं किया तो फिर चलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि घर जाना जो है ज़्यादा दिन के लिए, मतलब क्या हो जाएगा, फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स आपके पास में आ जाएंगे, और फिर क्या वीकनेस हो जाएगा। मानो आप प्रसाद खा रहे हो, वहाँ पर खाना खा रहे हो, पिताजी ने टीवी चला दिया, फिर टीवी में जो आपका सबसे फेवरेट एक्टर था उसकी नई मूवी आ गई, उसका ऐड आ गया, और बस फिर क्या होगा भाई। हाँ, और फिर पिताजी भी बोलेंगे, अरे ये मूवी देखते आ जाओ। या आप खुद ही देखने लग जाओगे। करेक्ट। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हो जाती हैं, और आजकल बहुत वैसा कल्चर है, बहुत डर्टी कल्चर है आजकल, लाइक दैट। देयर आर केसेस वेयर पीपल गेट टू सी सम बैड थिंग्स, एंड देन वो क्या है, संस्कार में चले जाते हैं, चित्त में चले जाते हैं, उनसे बाहर आना बहुत मुश्किल है। और कंडीशन स्टेज में माइंड का कैसा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो तारकोल की तरह चिपक जाती है तक। थोड़ा सा भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का उसने चीज देख लिया, तुरंत उसके चित्त पे चिपक जाएगा। और कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरा बाल्टी पे भर भर के डालो उसमें, वो बिल्कुल चिपकता नहीं है। कंडीशन स्टेज है ना, एक कोई गलत सीन देख लिया चिपक जाएगा, गलत कुछ वो कर लिया चिपक जाएगा। अजामिला का फॉल डाउन इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया, ही वॉज अ ब्राह्मण,
और क्या, ना स्मार्टफ़ोन, ना इंटरनेट, ना कुछ, और श्रुति संपन्न थी, बाय हार्टेड द वेदास। ही वाज़ मैरिड, chaste वाइफ, गुड पेरेंट्स, बट स्टिल वो एक थॉट, उसने देखा शूद्र-शूद्रानी एक दूसरे को गले लगा रहे, एंड देन ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। तो हमको तो कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, हमारा तो बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है। करेक्ट ना? आप में से कितनों के पेरेंट्स ने गर्भधान संस्कार किया था आपको पैदा करने से पहले? कितनों ने किया था? नहीं ना? हम में से कई लोग तो उनके एन्जॉयमेंट के प्रोडक्ट हैं। है कि नहीं? आप सोचोगे हम लोग तो लस्ट से ही आए, तो कितना लस्ट होगा? बट अजामिला के केस में तो गर्भधान संस्कार किया पेरेंट्स ने, बहुत सतोगुनी एनवायरनमेंट में उसका अपब्रिंगिंग था। फिर आप में से कितनों को बचपन से ही आपके पेरेंट्स ने वेदास पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए? कुछ नहीं। लेकिन ये भागवतम ने वो एग्जाम्पल क्यों दिया, टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ सेंसरी इनपुट, कितना ज़्यादा बद्ध अवस्था में सेंसरी रॉन्ग इनपुट अफेक्ट करता है, और बहुत करता है ये, ऐसा है। हाँ, आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो बहुत वो होगा। हाँ, कई बार डिवोटीज मुझसे पूछते हैं, प्रभु जी आप इतना ज़्यादा दूर-दूर कार में क्यों ट्रैवल करते हो? और आप, हेल्थ के लिए खराब है लेकिन बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक बार क्या हुआ था, मैं वाराणसी से कानपुर रात में ट्रेन पकड़ा था यहाँ से 10:30 या कुछ तो था। और मेरा अपर बर्थ था। तो एक लड़का-लड़की आए और वो बिल्कुल अपोजिट वाली अपर बर्थ पे बैठ गए। मेरे को मन में लगा कि शायद इनकी अलग-अलग कहीं सीट होगी, अभी कुछ समय के लिए बैठे होंगे। फिर मैं तो सोचा कि अभी सो जाता हूँ मैं तो। तो मैं जो है अपना शॉल ओढ़ के सोने लगा। थोड़ी देर के बाद में उन दोनों में कुछ बातें होने लग गई, और वो क्या था, वो दे वांटेड टू एन्जॉय ईच अदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर ही लेट गए वहीं पर बर्थ पे। लाइट वाइट्स बंद हो गई थी बोगी की, और ऐसे है ना बहुत पास में, तो जो भी वो एन्जॉयमेंट की बातें कर रहे थे वो भी सुन रहा था मेरे को। मैं एकदम बहुत डिस्टर्बेंस सा होने लगा, मैं बोला बाप रे, तो झमेला पार्ट 2 हो रहा है। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने ईयरफ़ोन लगाया प्रभुपाद जी का धुन, तो वो भी मैं सुन रहा था, लेकिन बार-बार माइंड जो है थॉट्स पे जा रहा था। डर्टी माइंड है ना, तो उस पे जा रहा था। तो मैं सोचा क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैं भगवान का नाम जो है चैंट करने लग गया। और प्रार्थना करने लगा, लॉर्ड बचाओ। मैं सोचा अभी उतर भी नहीं सकता हूँ, ट्रेन चल रही है, अब कौन-सी बोगी में जाऊँ, रात का टाइम है। ऐसे में चैंटिंग करने लगा, प्रे करने लगा। जब ऐसा कर रहा था तभी क्या हुआ, उस लड़के ने लड़की के कहीं तो कुछ स्पर्श किया, लड़की गुस्सा हो गई, और फिर लड़की डाँटने लगी उसको, और लड़की जो है उतर के चली गई। मुझे लगा चलो बच गए, ऐसा है। बट आजकल ये सब बहुत नॉर्मल हो गया, यू गेट टू सी। और अगर आप गलत चीज़ देख लेते तो क्या वो आपके चित्त में बैठ जाता है। इसलिए मैं अभी कार से ट्रैवल करता हूँ तो कार में ये कुछ नहीं है। आराम से बैठो, अपना यूट्यूब में जो है लेक्चर चलाओ, चलते रहो, ऐसा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे सेंसरी इनपुट्स मेरे कम हो। जितना सेंसरी इनपुट्स कम रहेंगे मेरे, उतना धीरे-धीरे करके माइंड कमज़ोर होगा सेंस अट्रैक्शन के प्रति। और धीरे-धीरे वो होगा। दूसरा क्या होता है, देखिए हमारे अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है ना, तो हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि मटेरियल नेचर उसके अनुसार रेसिप्रोकेट करता है। जैसे अगर हमारा कुछ डिज़ायर है टू एन्जॉय, कहीं न कहीं मटेरियल नेचर वो पर्टिकुलर सेंस ऑब्जेक्ट आपके सामने लेके आएगा। क्योंकि हमारा डिज़ायर है ना, प्रकृति तो डिज़ायर के अनुसार रेसिप्रोकेट करती है। तो हमें भी सिंसियरली प्रे करना चाहिए, माय डियर लॉर्ड, मेरा कंडीशनिंग अवस्था में ऐसा अट्रैक्शन है, लेकिन मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, काइंडली हेल्प मी। तो जैसे मेरे को लगा उस टाइम पे, अगर मैं वैसे चैंटिंग करके प्रे नहीं करता, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। फिर लेकिन लॉर्ड ने देखा कि अरे बाप रे! ये बेचारा ज़्यादा ही अफ़ेक्ट हो रहा है। तो मतलब बहुत अनयूजुअल है ना, जनरली ऐसे लड़ाई नहीं होती है। बट पता नहीं क्या हुआ उसमें, वो बहस की है, थोड़ी देर बाद में लड़की कहीं बोगी में चली गई, दूसरी बोगी में लड़का उसको ढूँढ रहा है, सीट ही खाली हो गई। तो मैं बोला अरे! ये तो लॉर्ड का बहुत स्पेशल मर्सी है। उस टाइम पे मेरे को एक और थॉट आया कि जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमको भगवान का नाम कर सकता है। जैसे कि मानो अगर आप ऐसे केस में ट्रैप हो जाते हो, तो क्या भागवतम खोल के पढ़ लोगे?
नहीं बढ़ पाओगे ना। लेक्चर हियरिंग में भी माइंड उधर जा रहा था, लेकिन चैंटिंग है जो क्या है, कॉल भी है लॉर्ड को और प्रेयर भी है लॉर्ड के लिए, और ऐसी सिचुएशन में इसी टाइप का चाहिए, राइट ना? यू वांट टू कॉल आउट आल्सो लॉर्ड एंड यू वांट टू ऑफर सिंसियर प्रेयर्स आल्सो। तो ये वी हैव टू सी एवरीवन इंडिविजुअली दैट हाउ सेंसरी इनपुट्स जो हैं हमारे कम हो, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई रोज़ बोलते प्रभु जी हम लोग तो IRCTC यूज़ करते हैं, उसमें कई गलत फ़ोटो आ जाता है। एक्चुअली गलत फ़ोटो वहाँ आ रहा है वो तो है ही, उसका कारण ये भी कि अंदर भी गलत फ़ोटो है। प्रकृति हमारे डिज़ायर से रेसिप्रोकेट बहुत करती है। तो आप देखना अगर जितने हमारे अंदर से डिज़ायर प्योर हो जाएँगे, तो आपके में गलत फ़ोटो आना बंद हो जाएगा IRCTC। क्योंकि प्रकृति को समझ में आ जाता है कि इसको नहीं देखना है। लेकिन अभी हमारे स्तर पे तो वी हैव टू सी कि हम एड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, जो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल, जिससे कि आपके में ऐसा कुछ आए ही ना। जब धीरे-धीरे करके प्यूरीफाई हो जाएगा, तो आपको ये सब नहीं आएगा, नहीं दिखाई देगा। इसी सृष्टि में देखिए हर चीज़ है, बहुत एलिवेटेड सोल्स भी हैं, बहुत डिग्रेडेड लोग भी हैं, बहुत डिवाइन एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत डिग्रेडेड एक्टिविटीज़ भी हैं। लेकिन अगर हमारा डिज़ायर है डिग्रेडेशन के लिए तो हमको वही दिखाई देगा। लेकिन हमारा डिज़ायर है डिवाइन एक्टिविटीज़ के लिए तो हमको वो दिखाई देगा। तो इसलिए हमको अपने आप को प्यूरीफाई करना है और उसकी स्टार्ट हो सकता है कि सेंसरी इनपुट्स हमारे बंद हों। जो पुराने चित्त पे संस्कार हैं गलत जो भी हैं, उनको तो धीरे-धीरे करके जो है हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, भक्ति की शक्ति से धीरे-धीरे करके वो प्यूरीफाई होंगे। लेकिन कम से कम अभी और ऐड नहीं होने चाहिए। अगर और ऐड हो गए सेंसरी इनपुट्स तो बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या है, विषय वस्तुओं से डील करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत आसक्ति हो जाता है। इसलिए शास्त्र बताता है कि बहुत केयरफुल रहो विषय वस्तुओं से जब हम डील करते हैं। क्योंकि विषय वस्तु क्या है, हमारा बहुत आसक्ति को खींच लेते हैं। आप देखोगे कि कितने आसक्त हो जाते हैं लोग, करेक्ट? खास करके जब मैरिज होता है तो पत्नी से आसक्त होना, फिर बच्चा होता है तो बच्चे से आसक्त होना, बहुत कष्ट के जब करके जब घर बनाते हैं तो घर से आसक्त होना। जहाँ-जहाँ आप एनर्जी डालेंगे सेंस ऑब्जेक्ट के लिए, वो सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है। ऐसा शास्त्र क्या बताता है? यही आसक्ति आप भगवान के लिए डेवलप करो। क्योंकि इस दुनिया में कहीं पर भी प्रेम नहीं है, सिर्फ लस्ट है। कोई बोलता है मैं आपका चाचा हूँ, कोई बोलता है मैं आपका फूफा हूँ, कोई बोलता है मैं आपका ताऊ हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उनके काम के हो। उनके काम के लिए आप उनके काम के हो। इसलिए वो आपको ऐसा बोलता है। आप देखो अगर आप उनके काम के नहीं हो तो आपका ही चाचा, आपका ही ताऊ, आपका ही फूफा, आपके पापा भी, आपके आजकल कलयुग में मम्मी भी आपको त्याग देगी। इंद्रप्रभु जो हैं, उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनको कहीं से तो कुछ बुक मिला था, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। उसको पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी की किताब मिली थी। तो उसमें उन्होंने पढ़ा देयर इज़ नो लव इन द मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज़ ओनली लस्ट। तो और बुक पढ़ के उनको थोड़ा प्रेरणा भी लगा भक्ति करने का। तो उन्होंने सोचा मुझे जॉइन करना चाहिए। लेकिन वो गर्लफ्रेंड से आसक्त भी थे। तो गर्लफ्रेंड से बोलते हम दोनों साथ में जॉइन कर लेते हैं। तो गर्लफ्रेंड उनके पैर पे पड़ती है, बोलती है आई हैव नॉट सफिशिएंटली एन्जॉयड यू। तो उनको वो लाइन क्लिक हो जाता है देयर इज़ नो लव इन द मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज़ ओनली लस्ट। उसको छोड़ के फिर भाग जाते हैं और फिर जॉइन करते बट ये एक फैक्ट है। आप देखो कोई भी रिलेशनशिप में व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को एन्जॉयमेंट देने की सोचता है या खुद एन्जॉय होने की सोचता है? खुद एन्जॉय होने की सोच रहा है, वो लस्ट हुआ या लव हुआ? हाँ, लव मीन्स आप उनको हैप्पी करना चाहते हो। यू वांट टू गिव एन्जॉयमेंट टू दैट पर्सन, लाइक दैट। दैट इज़ लव। टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ सीन इन मदर्स लव फॉर अ चाइल्ड। तो आप देखेंगे माँ जो है सेल्फलेसली बच्चे को वो करती है। और पेरेंट्स आप देखेंगे अगर बच्चा बस ये बोल दे कि थैंक यू, तो कई बार उनकी आँखों में आँसू आ जाता है, करेक्ट? वैसे ही आप देखेंगे भगवान भी सेल्फलेसली जीवों को
प्रेम करते हैं। जीव अगर थैंक यू भी बोल देना भगवान को, भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन एक नेचुरल रिलेशनशिप है पेरेंट्स का। और आप देखेंगे क्योंकि मदर बहुत सेल्फलेसली बच्चे को सेवा करती है तो सी ड्राइव्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दैट रिलेशनशिप। ऐसा कई बार आप जगह देखोगे जहाँ पर पति के साथ में उनका उतना नहीं बनता है, लेकिन बच्चे से बहुत शेल्टर फील करती है ओके, सेल्फलेसली सी इज ट्राइंग टू सर्व। There is no love or no sense gratification in the material world. So we have to see that the sensory inputs they will destroy my life. And the sensory inputs they increase hankering and craving for sense gratification. So sensory ideas, sensory sense objects. Prabhupada says in Ajamila section, we should never see materialist enjoying material life. ऐसे कई बार होता है ना, मैरिज हो रही है और सब लोग डांस वांस कर रहे हैं और ब्राइड ग्रूम है जो इतने एकदम चमचमकाते कपड़े पहनी हुई है, वो व्यक्ति भी कपड़े पहना हुआ है और सब तो ऐसा एनवायरनमेंट देख के लोगों को क्या लगता है, बाप रे इसमें बहुत एंजॉयमेंट है। और कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, आजकल तो मूवीज वगैरह यही सब एडवर्टाइज करती हैं, करेक्ट। अजा मेला का तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था जो भी था वीडियो रिकॉर्डिंग उसका, लेकिन आजकल आप देखोगे यही सीन्स रहते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे, प्रैक्टिकली टुडे एवरीवन इज अजामिला बिकॉज एवरीवन गेट टू सी दोज इनपुट्स। तो इसलिए हमें क्या है, बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए जितना पॉसिबल है और भगवान की कृपा पे निर्भर रहना चाहिए क्योंकि ये लाइफ जो है बहुत विशेष है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाते हैं, पहला चीज़ है टाइम फ्लाइज अवे। आपका ये जो टाइम है ये कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। याति महाराज हजारों साल, गुरुरा महाराज हजारों साल, सौबरी मुनि हजारों साल, because time flies away. Even Sugriva we see 4 months. He forgot instruction of Lord Ram. Time flies away. दूसरा क्या होता है, इसमें आप जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरा फॉरगेट कर देते हो, क्योंकि इसका नेचर इतना एब्जॉर्बिंग रहता है कॉन्शियसनेस में सेंस ग्रेटिफिकेशन का, नेचुरली स्पिरिचुअल लाइफ क्या हो जाती है, बैकग्राउंड में चली जाएगी या फॉरगेट कर लोगे या भूल जाओगे। तीसरा क्या है, आप जो है सीरियस के बारे में सोच ही नहीं सकते, ओल्ड एज में क्या होगा, डिसीज में क्या होगा, डेथ में क्या होगा। और आप देखो ये लोग कितना सफर करते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा इन्होंने प्रयास के ऊपर ही ध्यान दिया। अब जब ओल्ड एज आ जाती है, डिजीज आ जाती है, डेथ पास में आ जाती है, तो ये एकदम पागल से हो जाते हैं कि बाप रे अब क्या होगा। जैसे अभी आप सब लोग हो, आप सब लोगों का उम्र रहेगा 20, 21, 22, ऐसा है ना। अभी इसमें आप 40 ईयर्स ऐड कर दो। अब जो भी आपके सेंसरी आइडियाज हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के, उनके बारे में अभी विचार करो। आपका कितना है श्रीनिवास प्रभु एज? हाँ 22 में 40 ऐड करेंगे तो 62। अब जो भी आपको थॉट आते हैं उनके बारे में सोचो। अब बहुत मुश्किल है वही विचार करना, और सब होगा। 22 से 32 भी होगा, 62 भी होगा, 72 भी होगा सब होगा, लेकिन वो सोचने नहीं देता है माइंड लाइक दैट। पहला चीज क्या है, सेंसरी इनपुट्स हमें मिनिमाइज करना है, और जहां वीकनेस है वहां पूरा बाहर करना है। तो अभी हमारे केस में ये कैसे कर सकते हैं, सेंसरी इनपुट्स को मिनिमाइज एंड अवॉइड हाँ लेकिन कैसे कैसे? ओके, और अगर उतना हायर टेस्ट स्टडीज वगैरह, हाँ पहला तो है कि
हैं? फ्रीक्वेंसी ईयरली ना। ठीक है, दूसरा है if we have some friends who have certain weakness or something like that, तो इनके साथ हमें क्या करना चाहिए जब तक हम ठीक नहीं हो जाते? अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है इंटरनेट। तो इसमें अगर वीकनेस, जहाँ जहाँ वीकनेस है वो वहाँ क्या करना चाहिए? इसको भी या तो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए पेरेंटल कंट्रोल वगैरह से, या अवॉइड करना चाहिए। पहले तो ये जो है इसको सिंसियरली करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सिंसियर प्रैक्टिस जो है उसको कर सकते हैं। चैंटिंग है, रीडिंग है, हियरिंग है, सर्विसेज जैसे कि टीचिंग, और ये सब भी वी हैव टू सी दैट हाउ वी डू फॉर pleasure of Guru and Krishna. Prayers. ऐसा डिफिकल्ट है या पॉसिबल है? पॉसिबल। क्या डिफिकल्ट है बताओ पहले। इसमें प्रेयर वाला जो पार्ट है गुरुजी, वो कभी कभी आता है दिल से, बाकी इन जनरल दिल से नहीं आता। ठीक है, और क्या डिफिकल्ट है? कहाँ है प्रीचिंग सर्विस? और क्या डिफिकल्ट है? और क्या डिफिकल्ट है? और बस, ऊपर सब आसान है। हैं? इंटरनेट ऊपर का सब आसान है। नहीं, आप अपना बताओ। प्रभु जी हरे हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी हियरिंग आल्सो, हियरिंग आल्सो। ऊपर का सब आसान है सबके लिए। क्या फ्रीक्वेंसी? लेस डे हो सकता है बट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो कितना फ्रीक्वेंसी करना है? वो वेरी नहीं, बताओ ना, फ्रीक्वेंसी बताओ। नहीं, पहले इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? आइडियल नहीं, कितना होना चाहिए आप बताओ। 0 to 2 लिखा है मैंने।
नहीं, वो देखो आपके ऊपर है। हाँ, वो आपके ऊपर है। कई लोग हैं जो जगन्नाथपुरी के पास रहते थे, कभी दर्शन नहीं किए जगन्नाथ जी के। आपने नहीं सुना, एग्जाम्पल था ना एक का। हाँ। नहीं देखो, एक्चुअली आप इसका ग्रेविटी समझो। गुरुकुल टाइम में 5 साल से 25 साल तक बच्चा रहता था। 20 साल माता पिता से दूर। प्रभु रामचंद्र को भी वो छोड़े, है ना। कृष्ण भी गए 64 दिन के लिए। तो वो क्या है, वो एक ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहता है घर से दूर रहना। क्योंकि माता पिता जो हैं वो हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन देते हैं बच्चों को। गुरुकुल में वो सेंस रिस्ट्रेन सीखता है, सेंस कंट्रोल सीखता है। ये हम तो 5 साल की उम्र में सब कुछ किए नहीं। अभी वॉइस लाइफ भी कितना है आपके, 3-4 साल। और आप कोई भी आश्रम में जाने से पहले 2-3 साल और जॉब करोगे। उसके बाद तो जो एनएस में जाना है वो गृहस्थ है, मैरी करेंगे, जीएस वाले ज्वाइन करेंगे। आपकी ट्रेनिंग मोटा मोटी 5 से 6 साल तक टोटल होती है बस। उसमें भी क्या रहता है, बीच बीच में ऐसे आप घर जाते रहो जाते रहो जाते रहो, तो वो हो जाता है ऐसा। मैं अपनी लाइफ में इतना ही जाता था, यू कैन चेक विथ माई पेरेंट्स। इतना ही जाता था। 0 to 4, फ्रिक्वेंसी 0 to 2। और वो भी समझ जाते हैं। आप ज़्यादा जाओगे तो फिर वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम जाओगे तो वो समझ जाते हैं लड़का बिजी रहता है बहुत, कुछ बड़ा करने वाला है। बड़ा नहीं कर रहे हो आप, हंस रहे हो देखो। फेथ होना चाहिए ना, बड़ा तो कर रहे हो आप। फ्रेंड्स का एक्चुअली पता नहीं, मेरे लाइफ में तो नेचुरल हो गया था जब मैं डिवोशनल लाइफ में आने लगा। जो डिवोशनल लाइफ में नहीं आ रहे थे तो धीरे धीरे करके अपने आप ही वैसा हो गया। अभी क्या बात करें उनसे, है ना। तो थोड़ा, और दूसरा क्या है, ये नेचुरल हो सकता है अगर डिवोटी सर्कल में आपके फ्रेंड्स बन जाए। तो क्या फिर आपको नीड फील नहीं होगा और एक नेचुरल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एक ये है, इसको भी ध्यान रखना है इंटरनेट को। जितना हम प्रॉपर, जितना हम किम आसीत हैं इंटरनेट को लेके, उतना ही विरजित किम कर सकते हैं। वरना डिफिकल्ट है तो हमको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। देखिए, छोटी छोटी चीज़ हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम लोग जो है स्ट्रगलिंग डिवोटी रहेंगे और प्रोग्रेस नहीं करेंगे। और जब क्या कुछ समय के बाद में फिर माइंड जो है वापस बैड चीज़ों पे आ जाएगा कि तुमको हाई टेस्ट तो मिल नहीं रहे, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसी को ले लो। नहीं, इट्स अ फैक्ट। आफ्टर सम इयर्स एंड आपका डिटर्मिनेशन भी कम हो जाएगा, कुछ मिलता तो है नहीं भक्ति करने से। लेकिन भक्ति से पाना है तो उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इट्स अ नेसेसिटी फॉर अस टू स्ट्राइव। अब है सिंसियर प्रैक्टिस। तो इसमें क्या है, सी, जैसा मैंने उसमें बताया था, तपोदिव्यम पुत्र का इन सत्वम, कंडीशनड लाइफ में सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या रहेगी, नेचुरल। भक्ति क्या रहेगी, ऑस्टेरिटी। तपोदिव्यम पुत्र का इन सत्वम, तो इसलिए जब भक्ति की क्रियाएं करते हैं तो क्या भाव होना चाहिए, तपस्या का भाव होना चाहिए। मन नहीं करेगा चैंटिंग का, लेकिन मैं चैंटिंग करूंगा। रीडिंग है, उसमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो इसलिए साधना कार्ड रेगुलरली भेजना, रिपोर्टिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे को हेल्प होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सिंसियरली करने के लिए। कह रहे, अगर साधना कार्ड में मैं 0 भेजूंगा तो कितने दिन तक 0 भेजूंगा। करेक्ट ना, ऐसा। और दूसरा है, जब हम एसोसिएशन में रहते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जैसे आप देखो, वॉइस में रहते हो तो सबके 16 माला सुबह हो जाते हैं, करेक्ट। वॉइस में आप रहते हो तो रीडिंग भी हो जाता है, एक तो आपको ग्रुप रीडिंग ही हो जाता है, और बीच में भी आप रीडिंग करते हैं। हियरिंग भी एटलीस्ट मॉर्निंग क्लास तो डेली होता ही है। तो ये एसोसिएशन में ये थोड़ी ईजी हो जाती हैं। और सर्विस भी, ऑल ऑफ यू हैव टू स्टार्ट प्रीचिंग नाउ। प्रीचिंग का भी सेवा कुछ कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा ये नेचुरली आएगा जितना आपके हार्ट में उनके प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा। तो वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस रिलेशनशिप में। तो इन रिलेशन टू कृष्णा वी हियर अबाउट हिम मोर, and we try to follow his instruction. In relation to
Srila Prabhupada also we do same in relation to Guru also and other superiors also. तो ये नेचुरल होता है, जितना उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड फील होगा, जितना आप उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करेंगे, उतना उनके प्लेजर के लिए चीज़ें करना जो है आप चाहेंगे। और ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है बाकी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के लिए। ऐसा आप प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखो, प्रभुपाद जी के प्रति कैसा रहता है ना, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी, ऐसा। और प्रेयर्स जितना जैसा प्रेयर्स हो रहा है वैसा कर सकते हैं, विद टाइम इट विल बिकम मोर नेचुरल। एंड देन गुड रिलेशनशिप इन डिवोटीज, गुड रिलेशनशिप के लिए वो 6 एक्सचेंजेस हैं जो रूप गोस्वामी बताएं वो करने हैं, गिफ्ट्स, प्रसादम एंड हार्ट शेयरिंग, तब होगा ये सर्वान अपि कामान। ठीक है, आसान नहीं है, इसलिए तपोदिव्यम पुत्र का इन सत्वम बताया। जो डिवोटी की एक लाइफ है, एक वॉरियर की लाइफ है। भक्ति महाराज ने इसलिए सीरीज लिखा स्पिरिचुअल वॉरियर। एक वॉरियर की लाइफ है, आपको उस स्पिरिट में जीना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अच्छा लगता है उसको अवॉइड करना है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता है उसको करना है। तो बहुत दिक्कत है ना, बार बार माइंड जो है भागेगा, ऐसा है। बट ये कुछ चीजें हम करेंगे तो माइंड धीरे धीरे करके आपका और सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कितना उल्टा है ना, जो कंडीशन स्टेज में हम सोचते हैं कि इससे सेटिस्फेक्शन आएगा, उससे उल्टा करने से सेटिस्फेक्शन आता है। और बहुत हेल्प करता है एक्चुअली कोई भी चीज़ में आप। और ये सारी स्पिरिचुअल चीज़ें जो है ना, इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो। जैसे कि आप 1 महीना रोज 1 घंटा प्रभुपाद बुक पढ़ के देखो, एंड सी डिफरेंस फॉर योरसेल्फ, और उस डिफरेंस को नोट डाउन भी करके रखो डायरी में। क्योंकि क्या रहता है, माइंड का एक नेचर है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को वो भुला देता है, मटेरियल एक्सपीरियंसेस को एकदम अच्छी तरीके से रखता है वो। तो आप जो है जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलते हैं उनको नोट डाउन करके रखो। तो जैसे कि आपने 1 महीना के लिए रोज 1 घंटा प्रभुपाद बुक पढ़ा, उसके बाद आपको कैसा लगा डायरी में लिखो कि मैं पिछले 1 महीना डेली 1 आवर प्रभुपाद बुक पढ़ा और मुझे ऐसा ऐसा लगा। वैसी चैंटिंग का है, आप ट्राई कीजिए 1 महीना के लिए कि मैं जो है 6:30 से पहले 16 माला करूँगा, और 10 बजे से पहले 16 माला करूँगा। और क्या 11 बजे बोलना है? ठीक है, 11 बजे से पहले 16, एंड देन यू राइट डाउन योर एक्सपीरियंस, और मैं सिंसियरली हियरिंग का प्रयास करूँगा, ऐसा। ऐसी हियरिंग का है, यू ट्राई कि मैं इतना हियरिंग करूँगा, और 1 महीने के लिए ट्राई करो। 1 महीने के लिए गुरु और कृष्ण के प्लेज़र के लिए कुछ करने का प्रयास करो, ऐसा। फिर 1 महीने के लिए रोज़ शाम को कोई भजन गा के प्रार्थना करने का प्रयास करो। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, फिर देखो क्या होता है। सो लाइक दैट वी डू देन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई डिवोटी ने हमको कोई सुपीरियर के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ, एंड ही गेव सम नाइस अंडरस्टैंडिंग, तो लिखना चाहिए। और यू डिड सम सर्विस, ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड यू फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट, लिखना चाहिए। और ही हैड अ वेरी स्पेशल रेसिप्रोकेशन विथ यू, लिखना चाहिए। जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगी भक्ति में, वो सब लिखना चाहिए। कई बार कृष्णा कुछ रेसिप्रोकेट करते हैं, आपने कुछ सोचा और फिर वैसा कुछ हो गया, लिखना चाहिए, ऐसा। हाँ, अपने गौरव प्रभु हैं, वो शेयर कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था आपका 1 साल का ट्रेनिंग हो गया है, बिकॉज ही जॉइंड कि प्रभु जी मैं 1 साल का ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा सभा को लेके। तो आई आस्क्ड हिम कि 1 साल तो हो गया, तो अभी आपका क्या डिसीजन है, हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो वो बोल रहे थे कि प्रभु जी मुझे एक चीज समझ में आ गया, आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दैट ओनली विल गेट रिड ऑफ माई ऑल एंजाइटीज। तो उनका क्या भाई है, वो थोड़ा सा मेंटली कुछ उसको कंसर्न्स है। तो वो बता रहे थे कि बचपन से ही उसको मेंटली कंसर्न है, और मेरे माता पिता तो बचपन से ही क्या क्या नहीं किए उसके लिए, लेकिन उसकी समस्याओं का हल हुआ ही नहीं। तो मैं जो एंजाइटी में आ जाता था कि भाई का क्या होगा, भाई का क्या होगा, तो मैं समझ गया कि मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसको कर्म के अनुसार जो सुख दुख है वो अ, भोगना पड़ेगा। देन ही वाज टेलिंग, प्रभु जी मेरे को लग रहा है लॉर्ड का प्लान था मुझे ज्वाइन कराने का। बोला ऐसा कैसे? बता रहे थे कि मैं यात्रा में चैंटिंग कर रहा था, और एक व्यक्ति आए और बोले कि आप सर्विस नाव में थे क्या?
तो ये बोले हाँ, सर्विस नाउ कंपनी में जॉब करते थे वो। तो बोले तो आप पीले कपड़े में आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? बोले हाँ। बोले कितने साल जॉब किया? बोले 3 साल। बोले अरे सर्विस नाउ जैसी कंपनी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोला अरे सर्विस नाउ में अ, हमारा जो बॉस है, मैनेजर है, वो भी डिवोटी है, और हम तो इतना अच्छी तरीके से रहते हैं वहाँ पर, सब कुछ अच्छा है, डिवोशनल लाइफ भी अच्छा है, भक्ति भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो गौरव बोल रहे थे कि मैं भी उसी कंपनी में जॉब किया, मैं भी वहीं पर था, और मेरे को वो डिवोटी कभी मिला ही नहीं। और मेरे को एक ऐसा मैनेजर मिला जिसने मेरी लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेशन कर दी। फिर मैं बोला उनको, आप लिख के रखो जो भी आपको लगता है ऐसे लॉर्ड का रेसिप्रोकेशन है। ऐसा कई जगह होता है। मुझे याद है मैं एक बार कानपुर से यहाँ आ रहा था, और मैं क्या प्रसाद वगैरह जो भूल जाता हूँ कि बोलना कि जर्नी प्रसाद दे दीजिए ऐसा। तो मैं बस ट्रेन पकड़ लिया, आ गया। फिर जब अ, कानपुर से ट्रेन चलने लगी तब मुझे लगा यार जर्नी प्रसाद लाया नहीं है, भूख लग रही है, क्या करेंगे? तो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, अभी पहुंचेंगे तब देखेंगे। फिर आ रहा था तो प्रयागराज पे गाड़ी रुकी, तो वहां पर चेतनारायण को गाड़ी में घुसे। मेरा सीट ये, सामने उनका सीट था। बोले प्रभु जी आप? मैं कहा हाँ, मैं तो वाराणसी जा रहा हूँ। आप? बोले प्रभु जी मैं एग्जाम के लिए आया था, मैं भी वाराणसी जा रहा हूँ। बोले प्रभु जी आपने कुछ प्रसाद खाया क्या? मैं बोला नहीं, प्रसाद तो नहीं खाया। बोले प्रभु जी मैं 2 जनों का पैक करके लाया। आप खा ले। मैं यही सोच रहा था, पता नहीं इसको किसने इंस्पिरेशन दिया 10 जनों का पैक करके लाने के लिए। ऐसा लॉर्ड बहुत रेसिप्रोकेट करता है एक्चुअली। तो ऐसे नोट करने से क्या है, हमारा स्पिरिचुअल वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैंने चैंटिंग वाला बताया, वो लड़के लड़की में लड़ाई होगी, तो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग है। ऐसा है। अभी सोचो अजामिला भी अगर वैसे ही उस टाइम पे प्रे करते, चैंटिंग करते, तो दोनों में भी लड़ाई हो जाती। फिर भागवतम में आता है कि ही सॉ द प्रोस्टिट्यूट एंड देन सम फाइट टुक प्लेस बिटवीन देम एंड देन ही थॉट अरे क्या है ये। इसलिए कृष्णा बहुत हेल्प करता है। तो हमें ट्राई करना है अपना सिंसियर प्रैक्टिस, और आप देखेंगे जो आप करना चाहते हो उसके अनुसार सब चीज होगा। अगर आप घर में कम जाना चाहते हो तो घर में कम जा सकते हैं। आप मटेरियल फ्रेंड्स को अवॉइड करना चाहते हो तो उनको अवॉइड कर सकते हो। मेरे केस में भी सारे मेरे भौतिक दोस्त कट हो गए सारे। अभी तो मैं रिश्तेदारों में भी सिर्फ मम्मी पापा के यहाँ जाता हूँ और कहीं जाता ही नहीं। तो अभी सब बोलते रहते हैं वो देखा नहीं, उसको देखा नहीं। तो मेरे मम्मी पापा जो हैं वो भागवतम क्लास का कोई यूट्यूब का वीडियो भेज देते हैं, देख लो। अब क्या जाना, समझ में ही नहीं आता है ना। उनको मैं बोलता हूँ देखो जब भी मैं घर आता हूँ आप लोग आ जाइए, अब इधर उधर जाना ठीक नहीं है। तो ये सब कट हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अपने आप ही हो जाता है एक्चुअली। जो भी आप करना चाहते हो होता है। वैसे आप चैंटिंग अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए आप इन्वेस्ट करोगे, उसको प्रायोरिटी दोगे, उसके लिए स्ट्रगल करोगे, चैंटिंग अच्छा होगा। वैसे इंद्र तृप्ति करना आसान है कि डिफिकल्ट है? वो भी डिफिकल्ट है ना, लेकिन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे कोई बोल, किसी लेक्चर में कोई डिवोटी तो बता रहा था ना कि नर्क में जाना महंगा है, क्योंकि ये चारों नियम तोड़ना उसके लिए मेहनत है और पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आसान इस दुनिया में कुछ नहीं। इंजीनियर बनना आसान है क्या? नहीं। आप लोग आईटी में आ गए, कितना मेहनती हो आप लोग, आपके ब्लड में है मेहनत। तो वही मेहनत स्पिरिचुअल लाइफ के लिए करना है। करेक्ट। एक्चुअली हमारे पास सब कुछ है, डिटर्मिनेशन भी है, स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हम इंद्र तृप्ति के लिए लगाते हैं, भक्ति के लिए नहीं लगाते। यही डिफरेंस है। अगर हम भक्ति के लिए लगाएंगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। ध्रुव महाराज देखो एक निष्ठ होके 6 महीना के लिए लगा दिए, भगवान प्रकट हो गए। हम लोग 60 साल करते हैं लेकिन हाफ हार्टेड वे में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। उसकी जगह अच्छी तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। So this is general symptom that first foremost thing is his desire to give up desire for sense gratification. Then he can enter into the gate of transcendence. श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, किसी